नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट आपको दे दें कि ईटी नाउ स्वदेश के कमोडिटी मार्केट, खास करके एग्री मार्केट के कवरेज के लिए सम्मान मिला है। वेज ऑयल मार्केट के कवरेज के लिए सम्मान गोविंद भाई मेमोरियल सम्मान से ईटी नाउ स्वदेश को नवाजा गया है। एग्री सेक्टर की बेहतरीन कवरेज के लिए ये सम्मान हमें दिया गया है। The Indian vegetable oil market and insightful analysis have enriched the understanding of the industry. Please give him a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so very much. चलिए, तो ये सम्मान आप लोगों की बदौलत है, और जिस तरह से हमारी कवरेज ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार खाने के तेल को लेकर होती है, तो इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों के बीच में ये सम्मान हमें दिया गया। लेकिन चलिए, शो की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ख़ास मेहमान से, और वो ख़ास मेहमान हैं फिलिप न्यूमन, जो डायरेक्टर हैं मेटल फोकस के। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर न्यूमैन फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर ईटी नाउ स्वदेश. So how do you see this, the entire commentary of US Federal Reserve? Do you see any policy reversal from US Fed in near future? Well, first of all, thank you for having me on your show. It's a pleasure to be here. I think in terms of the Fed, we obviously had the 50 basis point cut yesterday. We are expecting further cuts this year. You could have another 2 cuts, perhaps of 25 basis points each. And I think in our view, you're not going to see a reversal. I think that's unlikely at this point in time. We are expecting further cuts into 2026. I think if we were to have a reversal, you would need to have quite a dramatic turnaround in terms of the economic outlook. But I think for now, we do think the Fed will stay the course. Mr. Newman, one more question is related to central bank buying. Many central banks have been increasing their gold reserves. What is driving this trend? Do you expect this to continue in near futures too? Well, you're absolutely right. And you've seen a number of countries, I think including India as well, buying gold recently. We had record buying in 2022, close to record buying last year as well. And in fact, this year, the first half, for a half-yearly period, was actually a record high as well. And I think one of the key reasons for those buying we've seen has been this gradual trend over many years, but I think an acceleration of the past couple of years is de-dollarization that we've seen from a number of countries. And I think this has encouraged gold buying, also encouraged some repatriation, holding the gold at home. I think from our point of view, we have seen a slowdown in recent months. I think part of that has been price related, but at the same time, we don't think that, central banks are changing course. They are still likely to keep buying gold. We're expecting very decent purchases for calendar year 2024. It may not be as high as the past couple of years, but again, they were record highs. And I think if you take a step back, then the total for this year will still be, I think, exceptionally strong. ओके, सो इनका कहना ये है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग आगे भी जारी रह सकती है, और जिस तरह से यहाँ पे खरीदारी चल रही है, ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। मिस्टर न्यूमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेटल फोकस एक्सपेक्टेशंस फॉर गोल्ड प्राइसेस इन द नेक्स्ट 1 to 2 years? Are there any specific global events that could drastically alter your forecast? Well, I think the most important one is, of course, what we've just been talking about in terms of the Fed and expectations of the Fed. We saw gold pop up last night, and then again, it's accelerating today, even as we speak. But having said that, I think a lot of the strategy of the Fed is already priced in, and this may suggest that the upside, at least for the foreseeable future, may be contained. I think an important element is what happens from a safe haven standpoint. Normally, when there's a risk event, gold tends to have a bit of a knee-jerk reaction, but then can weaken. However, with the events in the Middle East between Iran and what's going on in Lebanon, how Israel's behaving, how will Iran react to those events?
I think that adds, a huge amount of uncertainty in terms of what does that mean for the oil price? Will, if we see a contagion or the spread of uncertainty in the Middle East, what do we see oil prices pick up? What in turn does that mean for inflation and growth? So I think those are some of the risks out there. And I think, unfortunately, if we do see that spread, then that could see prices strengthen further. So that is certainly something that we are watching for. I think in terms of some of the physical markets, I mentioned about the underlying strength of central bank demand that is helping overall this year to provide a floor to the gold price. Indian demand after the duty cut was exceptionally strong. That's backed off recently, as you know. But I think, as we go through these months, as these markets adjust to these prices, we would think some of these markets will come back and help to provide a floor to the price. And so, with all that together, we do think that gold will break through 2,600. Of course, it's very close to there, even as we speak. And I think prices will remain well supported at these highs. I think the other point I think is important to make is that any upside, it won't be a straight line. You will have bouts of weakness as some investors take profits. But I think any bouts of weakness, any liquidation, and any sort of weakness in the price, I think would be fairly short-lived, because I think there's a lot of money on the sidelines waiting to come in. So again, coming back to those lows, I think they are quite well defended. But do you think any kind of corrections are due in the gold market? Because we are seeing continuously, we are seeing good run up in gold prices. So a correction is due in near term? I think you could have a correction, but I think it will be short-lived. You could have gold, below 2,400. But I should stress that if that happens, from our point of view, that wouldn't be the end of the bull market that we see. These lows are well defended. There is money on the sidelines waiting to come in. The phrase fear of missing out, those investors that didn't manage to get in as gold went through 2,400, as it then broke through 2,500. And I think, again, there's money on the sidelines. So if we were to get below 2,400, if we do see a correction which takes us below 2,400, then I think there'll be quite a lot of money that would be coming into the market, and which would mean that any correction, as I said, would be temporary in the market. So my last question would be related to silver. How is the investment outlook for silver? Any expectations to outperform gold in the short to medium term? Because with rising demand for clean energy technology, how do you expect from metal like silver? Could silver become more valuable than gold? Well, I think to your point about the solar market, the photovoltaic, which is such an impressive part of the market, it's the largest single end use of global silver industrial demand, and it's performing well overall. We are seeing record levels of silver being consumed in that marketplace. But from a price point of view, what we're seeing are how institutional investors are looking at the price. I think to some extent they have been disappointed in terms of how silver has performed vis-a-vis gold. The ratio is still around in the low 80s now. It's been in the very high 80s for some time. And I think investors have been disappointed by that. So it can become a bit of a vicious circle. At the same time, though, with gold at these levels and investors wondering, well, maybe we're seeing the highs for the moment. I think some investors are potentially, shifting their focus to silver. And that does give you the potential for silver to start to outperform gold, bringing that ratio down. And we think, a price in the mid-30s is, as a high, is quite possible next year. यानी आपको बड़ी तेजी यहाँ पे दिख रही है। और गोल्ड सिल्वर को लेकर न्यूमन को मानना है कि यहाँ पर बड़ी तेजी, जो साइड लाइन में जो पैसा अभी भी रुका हुआ है, वो भी आने वाले समय में हर गिरावट पर आ सकता है, और चांदी गोल्ड को भी आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू सो मच मिस्टर न्यूमन फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड गाइडिंग आवर व्यूअर्स। इट्स ग्रेट टू हैव यू इन आवर शो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दो और मेहमान हैं, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हैं। थैंक यू आप दोनों
का भी आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल आ चुके हैं, उनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। हितेश कुमार है उड़ीसा से, वो जानना चाह रहे हैं कि सोना और चांदी क्या मेगा लॉट में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए क्या ये लॉन्ग पोजीशन बनाने का अच्छा समय है क्या? अनुज जी, क्या सलाह देंगे हितेश जी को आप? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि गोल्ड अगेन अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में $2590 के आसपास आ गया है। कल रात को $2600 का हाई बनाया था, उसके बाद एक गिरावट आई थी, बट वो गिरावट पूरी कवर कर ली है। तो अब कहीं ना कहीं सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव लग रहे हैं। हमें लगता है कि खरीदारी गोल्ड में करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 73,025 का, टारगेट हमें लग रहा है कि 73,580 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही अगेन गोल्ड अब $2600 के ऊपर स्पॉट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 2610 2620 तक के टारगेट गोल्ड में देखे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन भाव 74,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए बना के चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय बन रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, जी माणिक हैं। गोल्ड में ही इनका सवाल है कि गोल्ड में अब क्या करना चाहिए? तेजी अच्छी आ चुकी है। केडिया जी क्या गाइड करेंगे माणिक जी को? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, सबसे बड़ा दिन था और मैं बोलता हूँ 2020 के बाद का ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि 0.5 का रेट कट गोल्ड के लिए काफी मायने रखता है। अगर मैं पिछले 15 साल का डेटा देखता हूँ तो एवरेजली 2008 के बाद जब भी हमने रेट कट देखा है तो नीचे में नीचे 11% का जंप एक साल के अंदर सोने में आया, और हायर साइड पे हमने करीबन 40% का भी जंप आते हुए देखा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि अगले एक साल के अंदर सोना अभी ऑलरेडी इंटरनेशनल में हाई लगा चुका है, डोमेस्टिक मार्केट में बाकी है। बट मुझे लगता है अगले एक साल के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था और अभी भी थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, कि $2740 का लेवल हम मार्च या ईयर एंड तक भी देख पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली तेजी का। लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो $2300 से $2600 की जो रैली आई है, बहुत ही शार्प और स्विफ्टली जंप आया है। तो टेक्निकली मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन है। मैं शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ, जैसे आज मॉर्निंग में भी हमने देखा फेड के इतने पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद भी कि ½ % का रेट कट कर दिया है, आगे वाली मीटिंग में और ½ % करेंगे, अगले साल 1% और करेंगे और आगे भी डोर ओपन रखेंगे। उसके बावजूद हमने गोल्ड को नेगेटिव ओपन होते हुए देखा, 72 700 800 के बीच में हुआ, फिर रिकवर हुआ है। तो मुझे लगता है टेक्निकल थोड़ा पुल बैक मिल सकता है। हाँ, आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से आप 73,100 पे लीजिए, 72,850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 73,600 से 700 तक का जंप मिल जाएगा। लेकिन एक छोटे करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा सोना और चांदी, जहां पे अगले 1-1.5 साल तक हम ये रैली कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विनय कुमार मिश्रा हैं। ये केडिया जी आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कच्चा तेल इन्होंने 5,850 रुपए पर शॉर्ट किया है, क्या सलाह देंगे केडिया जी इनको? देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा डिमांड का कंसर्न सभी जगह से बना था, जिसके चलते प्राइसेस ने $70 का लेवल ब्रीच किया था। तभी मैंने कहा था कि ब्रेंट 70 के नीचे टिकने वाली कमोडिटी नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन हैम्पर होंगे। उसके बाद हमने देखा चाइना एसपीआर होल्डिंग में रिफिलिंग करना चालू हो चुका है, यूएस कर चुका है। साथ में पिछले हफ्ते जो तूफान आया था उसकी वजह से ये रैली आई थी। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये 6,050 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब तक प्रॉबिलिटी है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो नीचे में 5850, ऊपर में 6,050 के दायरे में रहेगा। बट करंट लेवल जो है शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है, क्योंकि अब रेट कट हो चुकी है और इंडस्ट्रियल डिमांड यहां से इंप्रूव होती है, तो कच्चा तेल, बेस मेटल सभी में रैली आएगी। तो पहला चीज, आप 6,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हाँ, आज अगर वॉलिटिलिटी में 5850 60 तक आता है तो शॉर्ट से निकल जाइए, वहां पे लॉन्ग करके चलिए 5750 के स्टॉप लॉस से, जो 6,050 या उसके बियॉन्ड भी जाने की ताकत रखता है अगले 2 से 3 सेशन में। अगले दर्शक हमारे साथ अंकुर है, चांदी पर राय जानना चाह रहे थे। नवंबर एक्सपायरी में क्या करें? छोटे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुज जी क्या सलाह देंगे अंकुर को चांदी पर आप? हाँ, देखिए, सिल्वर में भी खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो आप सक्सेसफुली $30 फिर $31 दोनों ही जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक अच्छी रनअप गोल्ड में और सिल्वर दोनों में ही आती हुई देखी थी, और मॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे रही है। हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 89,380 का लगा। भी कुछ दिक्कत हो गई, कॉल आपको बता देते हैं। 91,300 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अनुज जी की है चांदी को लेकर। आप क्या सलाह देंगे चांदी पर केडिया जी? अंकुर जी के लिए आप सलाह दे दीजिए।
के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और कंटिन्यूसली ये फॉल दिखा रहा है। इस वक्त 83 के नीचे आ गया, 2.5% का फॉल दिखा रहा है रेशियो में। इसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करेगी। बेस मेटल में भी रैली है। कल के पुल बैक के बाद अच्छा जंप जरूर है, बट इमीडिएट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है 89,600-700 तक लीजिए, 91,000 का टारगेट है। बट थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलिए, मुझे लगता है 1 लाख तक का वैल्यू हम ईयर एंड तक ही देख पाएंगे, जिस ढंग से अब हमें $30 के ऊपर का जो ब्रेकआउट मिला है वो कभी भी 32.5 का लेवल टूटता है तो $38-39 तक भी दिखा है। तो लॉन्ग टर्म भी स्ट्रांग है। और अगले 2 दिन की बात करें तो जब तक प्राइजेस 88,700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 91 का लेवल पहले दिखा के फिर करेक्शन लेता हुआ दिखेगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कृष्ण को क्या सलाह है अनुज जी कॉपर में? देखिए, कॉपर में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। काफी दिनों के बाद 800 के ऊपर सस्टेन किया है। इवन अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों से लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 809 का लगा है। टारगेट हमें लगता है कि करीबन 822 तक देखा जा सकता है। हमने लास्ट टाइम वीकली टारगेट 815 का दिया था, जो कि अचीव हो चुका है। हमें लगता है कि अब नेक्स्ट टारगेट 822 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ परवीन हैं पुणे से। हल्दी और नेचुरल गैस ये जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। केडिया जी क्या करें हल्दी में और नेचुरल गैस दोनों काउंटर में? देखिए, सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद आज मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया। बट कुल मिलाकर जो अभी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं डैमेजेस की ज्यादा है। जिस ढंग से हम देख रहे थे 35-40% का स्विंग बढ़ा है, बट अब ये बातें हो रही है कि 15 से 18% डैमेजेस है या फिर यील्ड में फॉल है। लेकिन ये डैमेजेस ऐसा नहीं कि इसमें यील्ड में फॉल आएगा। काफी जो बरसाती हुई है उसमें क्रॉप की फार्म निकल चुके हैं, जिसका एक इम्पैक्ट आने वाले 15-20 दिनों में और ज्यादा दिखेगा। तो आज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट मुझे लगता है 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एफएमसीजी की डिमांड भी स्ट्रांग रहेगी, जिसके चलते भाव में तेजी रहेगी। 14,100 पे लेके चलिए। 13,700 का स्टॉप लॉस है। इमीडिएट टारगेट तो 14,500 है, बट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हम देखेंगे 15,500 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो जो रैली हमने 200 के ऊपर आती हुई देखी थी उसका मुख्य कारण था जिस ढंग से हरिकेन गल्फ ऑफ मैक्सिको में हिट हुआ था, इसकी वजह से ये रैली हुई थी। अब प्रोडक्शन रीस्टेट होना चालू हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा करेक्शन आना चालू है। अगले 2-3 दिन में वेदर में भी जो कमी रहेगी, इसकी वजह से डिमांड में ड्रॉप है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम डाउनसाइड 188 का रहेगा, जहां पे वापस री एंट्री का मौका रहेगा। तो 188 के करीब लेके चलिए, 184 का स्टॉप लॉस लगाइए, वापस 198 का लेवल मिलेगा। तो थोड़ा करेक्शन है, 188 तक का वेट कीजिए, वहां पे मिले, वहां पे हम नया पोजीशन बना के चलेंगे। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक पांडे है। नेचुरल गैस मिनी में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कि अनुज जी क्या करें? एनजी मिनी में 190 के नीचे है भाव। 25 सितंबर की एक्सपायरी वाले एनजी मिनी की बात कर रहा हूँ। आगे क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, विष्णु जी, नेचुरल गैस में हमने एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हावी होते हुए देखा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 195 के आसपास लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि अभी फिलहाल और एक गिरावट में आ सकता है और नीचे करीबन 190 के आसपास के लेवल देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल हमें लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट होंगी यहाँ पर आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ मनोहर सिंह है जैसलमेर से। जीरे का बाजार आगे कैसा रहेगा? केडिया जी जीरे में क्या लग रहा है? आज अच्छी तेजी दिखी, 26,280 पे बंद हुआ है। आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या? देखिए, जीरे में तेजी कंटिन्यू रहेगी और इस बार हम देख रहे हैं कि 20 सितंबर आ चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि 20 सितंबर एक मुख्य डेट है, बिकॉज इसके बाद से अटकलें लगेगी इस बार सोइंग कैसी रहेगी। तो भाव में कमी की वजह से इस बार उम्मीद है कि 18 से 20% की सोइंग जीरे में कम रहेगी। साथ में माल अच्छा है, कैरियर स्टॉक अच्छा है, जिसकी वजह से अपसाइड भी कैप रहेगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी टाइमिंग नहीं। हाँ, सोइंग का ड्रॉप का न्यूज आएगा तो मार्केट एक बार जंप कर जाएगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है जैसे पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि 26,100-200 ही जाएगा, बट थोड़ा सा जो मोमेंटम है, हार्वेस्टिंग डिले है, तो इस बार हमारी सोइंग भी डिले रहेगी। तो 26,600 तक का लेवल दिखा दे, बट वहां पे एक बार आप निकल जाइए, क्योंकि एज कंपेयर टू हल्दी और धनिया, जीरे के पास माल बहुत ज्यादा है हमारे पास, जिसके चलते 26,500-600 पे एक बार आने पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बड़ी मंदी नहीं रहेगी मार्केट में, साइड वे टू पॉजिटिव ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। अगले दर्शक है गगन है दिल्ली से। कॉपर और चांदी पर राय जानना चाह रहे हैं अनुज जी। अनुज जी क्या सलाह देंगे कॉपर चांदी? हालांकि आपने बता दिए, एक बार फिर से गगन के लिए बता दीजिए।
देखिए बेस मेटल में ट्रेंड रिकवर हुआ है सभी इंडस्ट्रियल मेटल में, तो बेस मेटल और सिल्वर दोनों ही बाइंग साइड के लिए रहेंगे। कॉपर में खरीदारी करें, 809 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 822 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना के चलें, 89,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 91,300 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल, सिल्वर, कॉपर में खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अनिल है राजकोट से। कॉपर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 810 रुपए 30 पैसे पर। अब क्या करें? केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको? कॉपर शॉर्ट की पोजीशन है, आज तेज दिख रहा है मार्केट, क्या करें? देखिए कॉपर में हमने अभी तक जो गिरावट देखी थी वो चाइना की डिमांड को लेकर था। चाइना में अभी भी डिटोरेशन है जिसकी वजह से फॉल बैक था। बट डॉलर की गिरावट, इंटरेस्ट रेट की कटौती और अब आने वाला जो सीजन है उसके अंदर हम देखेंगे चाइना में रीस्टॉकिंग और विंटर्स को लेकर चिंताएं रहेगी जिसकी वजह से रैली आई है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, सिल्वर कॉपर रेशियो को ध्यान रखिए। कभी भी जब चांदी में तेजी आती है तो उसका फॉलो अप बाइंग कॉपर में भी दिखाई देती है। तो जिस ढंग से कॉपर चांदी में जो बड़ी तेजी आई है उसी के फॉलो अप हमें लगता है कॉपर में है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट पोजीशन है इमीडिएटली निकल जाइए। मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर ये एग्जिट कर लेते हैं और ऊपर में ध्यान रखिए अगर 820 का लेवल ब्रीच होता है तो आज के लिए तो हम 822 तक ही देख रहे हैं, बट मुझे लगता है अगले हफ्ते में 834 से 840 का भी लेवल स्पाइक कर जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही मजबूत है। शॉर्ट पोजीशन से इमीडिएटली निकल जाने की सलाह रहेगी। अगले दर्शक है रोशन फेरवानी है कटनी मध्य प्रदेश से। गोल्ड बाई कर रखा है इन्होंने 73,550 रुपए में। अब जानना चाह रहे हैं टारगेट और एसएल। अनुज जी बता दीजिए क्या टारगेट क्या एसएल है आपकी तरफ से? देखिए टारगेट हमें लगता है कि 73,800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं और 73,020 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है कि एक अच्छा जंप यहाँ पर आ सकता है और 2600 से लेकर $2610 के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। नहीं, आपको यहाँ से और तेजी लग रही है। एक दो और दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है। चांदी का स्टॉप, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानना चाह रहे हैं। केडिया जी क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस लेवल है? छोटा जवाब। देखिए चांदी का अगर आप इंट्राडे की बात करें तो मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी जहां पे मुझे लगता है कि 91,000 का आपका रेजिस्टेंस मान के चलिए, और सपोर्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 88,700 का सपोर्ट रहेगा। ब्रॉडर रेंज रहेगा मार्केट में। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए आगे के शोज में हम शामिल कर लेंगे। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।